हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले होस्टिंग वेब ऐप ऑन गूगल क्लाउड का सॉल्यूशंस। सो लैब को स्टार्ट करते हैं एंड क्विकली इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सो एज वी हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर लैब, हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। जस्ट लेट्स क्विकली ओपन अवर क्लाउड कंसोल एंड लेट्स कॉपी दिस, जिससे कि हम लोग सेट कर सके या फिर हम लोग एक करके भी कमांड चला सकते हैं और फिर एक साथ में चला देते हैं। सो लेट्स क्विकली वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स टू ओपन द गूगल क्लाउड कंसोल। सो हम लोग का क्लाउड कंसोल ऑलरेडी खुल चुका है। सो लेट्स कॉपी एंड क्विकली पेस्ट ऑल दिस पर्टिकुलर कमांड। जो ऑथराइज हो जाएगा। इट टेक्स जस्ट फ्यू सेकेंड्स टू ऑथराइज, और ये सारी चीज़ें इसके साथ एक्सपोर्ट हो जाएगी एंड हम लोग को एनेबल कंप्यूट एजेंट। सो जस्ट कॉपी दिस एंड स्पेस द वैल्यू। लेट मी क्विकली, ठीक है, एनेबल हो गया। अब हम लोगों को सेकंड बोला है क्रिएट क्लाउड स्टोरेज बकेट। तो बकेट बनाने के लिए हम लोग को जस्ट कॉपी यूज अ क्लाउड इन्वायरमेंट विद इन द शेल इन्वायरमेंट। ओके, जस्ट पेस्ट कर दो एंड इट विल ऑटोमेटिकली वर्क फॉर अस स्टार्टिंग क्रिएटिंग द फाइल। ये ऑलरेडी हम लोग के लिए क्रिएट कर चुका है, जस्ट हम लोग को चेक करना है, चेकिंग अवर प्रोग्रेस। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स अर्न कर चुके हैं। थर्ड इज क्लोन द source repository. So again copy and again quickly paste it for cloning the repositories. क्लोन हो चुकी है। अब हमें ls भी कर सकते हैं या फिर हम लेट्स मी क्विकली एंड ls लेट्स क्विकली गो इनटू द repository। हम लोग repository में setup.sh को रन कर रहे हैं। इंस्टॉलिंग चीज़ें हम लोग के इंस्टॉलेशन हो रही है। दैन npm install lts, लेट्स कॉपी द कमांड एंड let's wait to install this dependencies. So our setup has been already done. Let's quickly clear. It takes certain few times for the setup, so don't worry. And let's quickly paste and npm install. Done. Let's quickly go into this folder and npm start. There's again starting the things. You can see output like this. So you can go to the preview option. Here we have preview option, web session preview, and preview on port number 8080. We can see the output coming onto the port 8080. And you can close the terminal. Okay. It will take some time. That's no use. Let's quickly jump to the another thing. Now let's go to and another few more steps. Exit. Let's quickly exit. Control C. Just quickly clear and paste, touch, and we have to go to the open editor, navigate to Mothalic folder, open editor. It's provisionizing, so let's wait for the editor file. So you will look see such types of things, और इस टाइप से एक ओवरव्यू मिल जाएगा। यहाँ पे एक start.sh फाइल है। Just copy the file and just quickly paste over here। ठीक है, पेस्ट कर दिया। जस्ट कंट्रोल सेव इट एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, सेव करने के बाद नेक्स्ट टू द टेक्स्ट डेव शेल प्रोजेक्ट रिप्लेस योर प्रोजेक्ट आईडी टू क्विक लैब दिस 05 डेव शेल and line of code within should be reassembled like this. So let's quickly make the changes over here. This is our dev shell like id. Let's quickly paste with the id. Anything else more we have? No, nothing else. हम लोग अब उसको सेव करके what is the next step we have, gsid, ठीक है, save but don't close it. Okay, file, just file and just save it. What is the next step? Look at the button bottom right. Now we have to again return to the this CloudShare terminal and open terminal. We have already into the terminal. Let's quickly copy this and run this both of the files.
So it has started, the files has been started, and you can store, copy the code. So let's quickly copy and let's quickly paste. So it has started copying and cloning the code. What is the next step? Just let wait for copying and let's quickly check our progress. So as our things are done, let's quickly check our progress and let's proceed to the next. What is the next? We have to create a backend. We have to configure the backend. Let's quickly clear and let's configure the backend. Configure the connections. Let's quickly configure the connections with the backend. Let's wait to done this part. So this is output will be looking like. अगर next command रन कर G Cloud Compute के साथ same command, copy the external IP for the backend, external IP and Cloud Shell Explorer, navigate to the React app, Cloud Shell Explorer. So we have already saved our IP over here. Let's quickly save one more time. And what is the next step they are saying in the Cloud Shell? Let's navigate to the monopathic and React app. This is our editor, and in the editor this same more React app. This is the React app. In the React app, code editor, view, Toodle. Where to find to the view? Let me quickly see. So we have to go here, and in the view we have to quickly Toodle hidden files. So this all are the hidden files. We have to go into the .env and we have to change the local address or backend address in the here. We have to just provide the backend address instead of the local address. Let's quickly paste our backend address, both of the them. As we have replaced our both of the local address with the backend address, save the file. Let's quickly save the file and let's quickly save. What is the next step? Cloud Shell, and we have to again back to the Cloud Shell and we have to again run this both of the command, and let's wait to and let's copy another command also. So it's the script has been started running and the backend is connecting started. Okay, so let's wait for completion of that. So it has been successfully done. Let's clear the screen and let's quickly again run the next command as we have already copied, and let's copy furthermore commands. And we have to again configure the network here as we have the things are again started. So let's wait to complete these things and we quickly copy the next command and run this. Let's quickly run again next commands. Dave shall start dot projects, and we have to configure the network. So let's copy quickly and let's wait to complete this power. Done. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों को क्लाउड के सारे पॉड्स एंड फायरवॉल्स ओपन करना है. ये भी हो गया, टारगेट पोर्ट भी हो जाएगा. देन यू हैव टू जस्ट लिस्ट एंड wait for 3 minutes, then open the browser tab where external IP navigating to projects, front end address. Okay, let's quickly clear and just quickly paste gcloud instance list. This is the IP we have front end, and what is saying wait for 3 minutes, and then we have to open front end IP. So just copy this and just paste into the Chrome browser and let's quickly check our progress. The progress will be done. Okay, we have already earned. Now let's create manage instances groups. So we have to, let's quickly check over here also. We have successfully managed. We have to create now. Okay, these things. Now we have to quickly, first we have to stop the both of the instances. So let's quickly achieve this. दोनों instances को stop कर देते हैं हम लोग. Then हम लोग stopping front end and back end हम दोनों को बंद कर देंगे.
तो थोड़ी देर वेट करते हैं, जैसे स्टॉप होता है हम लोग सेकेंड वाला भी रन कर देंगे. Or quickly both run both of this particular command to terminate the instance, and let's quickly copy and create a template for all this particular part. So it's been started working, and let's wait for deleting these instances also. Now as the both of them दोनों के दोनों स्टॉप हो चुके हैं एंड नेक्स्ट कमांड हमने कॉपी कर ली थी ऑलरेडी. क्विकली हम लोग रन करते हैं. ये टेम्पलेट बनाता है, नथिंग एल्स. इसको अगेन क्लियर कर देते हैं स्क्रीन एंड हम लोग पेस्ट कर देते हैं नेक्स्ट कमांड. कन्फर्म द इंस्टेंस टेम्पलेट्स वर क्रिएटेड, तो लिस्ट करके हम लोग कर सकते हैं. इसको अवॉइड कर दो. जी क्लाउड डिलीट बैकएंड, हम लोग बैकएंड को डिलीट करना है एंड जस्ट प्रेस वाई टू डिलीट द बैकएंड. इसको डिलीट कर देंगे हम लोग बैकएंड को. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्रिएट मैनेज ग्रुप इंस्टेंसेस. तो हमको मैनेज ग्रुप इंस्टेंसेस क्रिएट करना है. जस्ट कॉपी एंड अगेन पेस्ट मैनेज ग्रुप इंस्टेंसेस, देन अगेन नेक्स्ट वाला कॉपी कर लो. फिर इट टेक सम फ्यू सेकेंड्स टू क्रिएट, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं इसके क्रिएशंस के लिए. और ये हो चुका है. दूसरी भी कमांड हम लोग रन कर देते हैं. कॉपी एंड लेट्स क्विकली रन बोथ ऑफ देम. अब नेक्स्ट हमारे पास है फैंसी. हम इसको माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट एंड सर्विस को एक्सपोज कर रिपोर्ट के ऊपर. आई थिंक ऑलरेडी हमने ये वर्क कर चुके हैं. ओके नहीं, ये हम लोगों ने ये दोनों वर्क कर लिया. अब ये वाली रन करनी कमांड नेक्स्ट. लेट्स क्विकली अगेन क्लियर अवर कंसोल एंड क्विकली पेस्ट फ्रंट एंड आईपी. ठीक है. इसको अगेन कॉपी एंड इसको होने देते हैं. it will take just few seconds to complete this. ये हो चुका है. इसको अगेन पेस्ट करके हम लोग वापस रन कर देते हैं. और बोथ ऑफ देम डन. कॉन्फ़िगरिंग, फिर हमें वापस हेल्थ चेक्स कॉन्फ़िगर करने हैं. सो अपडेटेड. ओके, इसको वापस रन कर देते हैं. दोनों हेल्थ चेक्स को भी रन करना पड़ेगा. दोनों हम लोग रन कर चुके हैं. अब फायरवॉल को एक्सपोर्ट कर देते हैं. सेकेंड नंबर पेस्ट एंड रन. इसको भी हम लोग थर्ड वाले के दोनों कमांड कॉपी कर लेते हैं. ये भी पेस्ट एंड रन. लेट्स कॉपी एंड रन. ये भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स वेट टू फिनिश दिस पर्टिकुलर कमांड. तो ये हमारे पास रनिंग हो रहा है. अगेन नेक्स्ट कमांड पेस्ट कर दिया. ठीक है. ये दोनों रन चुके. इट कैन टेक अप टू 15 मिनट्स. ये 15 मिनट्स ले सकता है अबाउट हीलिंग मॉनिटरिंग द इंस्टेंसेस ग्रुप. सो वेट करते हैं 15 मिनट्स तक के एंड हम लोग इसको चेक में प्रोग्रेस कर लेंगे कि कौन कौन सी हो चुका है. सो नेक्स्ट कमांड हम लोग चेक करते हैं हमारी प्रोग्रेस को. व्हाट इज अवर प्रोग्रेस. इट कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप है लोड बैलेंसर क्रिएट करना है. सो लेट्स क्विकली कॉपी एंड लेट्स पेस्ट. इधर भी हम लोग कॉपी पेस्ट and again this copy and again paste over here. Health checks. फिर हम लोग बैकएंड की सर्विसेज में जाएंगे. क्लियर कर देते हैं हम इसको. अगेन हम लोग बैकएंड को भी लोड बैलेंसर के ऊपर डिप्लॉय कर दे रहे हैं. जैसे ही ट्रैफिक आएगा वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो अगेन कॉपी दिस. ये हमारा ऑलरेडी पुराना है. सो लेट्स क्लोज. लेट्स वेट टू कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट हमारा अगेन बैकएंड वाला ये वाला कॉपी कर चुके हैं हम लोग. अब थर्ड दिस इज टू रन. नेक्स्ट स्टेप हम लोग रन कर देते हैं. इसको कॉपी कर लेते हैं. अब हम इसको लोड बैलेंसर को बैकएंड में ऐड कर देंगे. पहले शायद फ्रंट एंड में करते हैं. हाँ, प्रोडक्ट्स में. सो लेट्स वेट टू कंप्लीट दिस एंड हम ये तीनों कमांड भी रन कर देते हैं फटाफट.
just copy and quickly run the command for the front end also. और ये भी रन हो चुका है. लेट्स क्लियर स्क्रीन. हम लोग नेक्स्ट कमांड वापस रन कर देते हैं. उसके नेक्स्ट वाली भी कॉपी कर देते हैं प्रोडक्ट्स के लिए. एज वी हैव रन दिस आल्सो, सो हम लोग ये वाला भी पेस्ट करके रन कर देते हैं दोनों को. एंड फोर्थ स्टेप हमें अब नेक्स्ट वर्क करनी है. लेक्स कमांड हम लोग रन करते हैं जी. इससे हम लोग पास URL आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्रिएट अ मैच पैथर, डिफ़ॉल्ट बैकएंड सर्विसेज, match patcher, then creating a proxy URL, then global forwarding. इसको भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं. हम लोग फॉरवर्डिंग कर चुके हैं इसके अंदर. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग चेक कर लेते हैं जैसे ही कंप्लीट होता है. SCPTS लोड बैलेंसेस 1 कंप्लीट हो चुका है. हम लोग यहाँ पे चेक माय प्रोग्रेस, और यू कैन चेक हियर आल्सो चेक माय प्रोग्रेस. ठीक है. This thing is done. Now next is update on the configurations. Copy, update the ये हमें करना पड़ेगा. Quickly copy and paste. इसको भी हम कॉपी करके पेस्ट. Okay. And list global you will get return the अगेन फॉर द नेक्स्ट स्टेप हम लोग को env फाइल खोलनी पड़ेगी एडिटर में जा कर के. लेट्स क्विकली रिफ्रेश .env. ठीक है. यहाँ पर क्या बोल रहा है रिटर्न. सो हम लोग को इस टाइप से चेंज कर देना है वहाँ पे. तो हम लोग कॉपी करके दोनों को पेस्ट ही कर देते पूरा की पूरा. ये एक्सटर्नल IP को रिप्रेजेंट करता है. हैव टू जस्ट सेव द फाइल अगेन. द पॉट्स वर रिमूव्ड इनटू द. सो हमको सेव करना है. रीएक्ट हमें रीबिल्ड करना पड़ेगा. अगेन गो टू द टर्मिनल एंड बिल्ड द फाइल. बिल्डिंग स्टार्ट हो चुके. इट माइट टेक सम टाइम. सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप को कॉपी करते हैं उसको बिल्ड होने में. लेट्स वेट. तो हम लोग का ये ऑलरेडी वर्क कर चुका है. लेट्स क्विकली रन अनदर. हम लोग का ऐप वर्क कर चुका है. रिमूव -rf कमांड्स. ठीक है. अपडेट करते हैं हम लोग फ्रंट एंड की IP को एंड चेक करते प्रोग्रेस. अगेन डिप्लॉयमेंट हो रहा है तो इट विल टेक सम फ्यू सेकेंड्स टू कंप्लीट. तो वेट करते हैं हम लोग इसके कंप्लीट होने का. एस कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग उसको क्लियर करते हैं और उसको हम पेस्ट करके रन कर देते हैं 100%. सो ये हो चुका है. लेट्स क्विकली चेक अवर प्रोग्रेस एंड on in earning has been done well. So let's quickly auto scale the things. So let's make clear and again हम लोग auto scale कर देते हैं दोनों को. कॉपी कर चुके हम लोग. अनेबल द कंटेंट डिलीवरी एग्जीक्यूट द कमांड. इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं. दिस इज ऑल्सो डन. लेट्स क्विकली रन दिस enable config कमांड. ऑटो स्केलिंग के बाद हम लोग इसको चेक कर लेते हैं हम लोग का प्रोग्रेस हो गया होगा. और नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं हम लोग की प्रोग्रेस. इट विल बी इन द कंप्लीशन स्टेट. लास्ट हम लोग का ये बचा है. लेट्स क्विकली चेक. आई थिंक फ्यू मोर स्टेप्स टू गो. सो हम लोग
इसको अगेन कॉपी करते हैं, then quickly paste, again copy, again paste, instance type it is rolling out. Wait for 3 minutes and run, follow the monitor of the updates. It will take something some 3 minutes to 4 minutes there. Let's paste and let's run. So let's quickly copy this particular command and control C to stop. हम लोग पहले इसका नाम ले लेते हैं, जो भी इंस्टेंस का नाम है, verifying, copy and let me quickly paste over here and इसको control C कर देते हैं. next command ये है, हम इसको edit कर देते पहले ही. copy and paste, copy and quickly run. इसको रन कर दोते हैं. यहाँ पे लाइक डिस्क्राइब कर देगा इंस्टेंसेस के ऊपर, मशीन टाइप दिस एंड m2 स्मॉल, सेम चीज़ हमारे पास आ चुकी है. ठीक है. नेक्स्ट मेक चेंजेस टू द वेबसाइट फॉर द फॉलोइंग कमांड. इसको हम लोग पेस्ट, न्यू इंडेक्स, कॉपी एंड पेस्ट, get the resulting code should look like this. Run the your reacted to. ठीक है, हम लोग का रिजल्टिंग कोड लुक लाइक दिस. दैन हम लोग को उसको बिल्ड करना है अगेन, रिएक्ट ऐप npm बिल्ड. सो npm से अगेन बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है. सो लेट्स वेट फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स एंड हमें रिप्रोच भी करना है. वेट करते हैं हाउ डज इट गोस. तो ये वर्क हो चुका है. लेट्स क्लियर स्क्रीन और नेक्स्ट कमांड हम लोग रन कर लेते हैं. रिपुश द कोड. ठीक है, पुश द चेंजेस टू द रोलिंग अपडेट्स. रोलिंग अपडेट्स हम लोग पुश कर देते हैं और वेबसाइट पे इट विल टेक जस्ट फ्यू सेकेंड्स टू कंप्लीट. फिर हम लोग और चेंजेस चेक करके हम लोग देख लेते हैं. अगेन जस्ट क्लियर एंड नेक्स्ट कमांड हम लोग रन करते हैं. अपडेटेड, डन. एंड क्विकली हम लोग चेक करते हैं हमारी प्रोग्रेस. यहाँ पर इट विल बी डन. सो हम लोग के पूरी की पूरी ये वाली लैब हो चुकी है. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो. यहाँ पे वापस टिक आ जाएगा while completing. We have completed. Let me quickly end the lab and let me quickly see. यहाँ पर अगर तुम लोग इसको वापस रिफ्रेश करोगे तो 3 लैब्स तुम लोग की कंप्लीटेड यहाँ पे दिख जाएंगी. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर से पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस.